फ्रेंड्स, पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम मीडिया, उनका सभी का दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मैं डॉक्टर के.सी. बंसल, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ऑल्सो as I said, this press meet is being organized by these two different organizations, that is the National Academy of Agricultural Sciences, where we are located at the moment here in this room, and by the Trust for Advancement of Agricultural Sciences. So I have a pleasure in welcoming the co-chairs of this particular press meet, Dr. R.S. Paroda, who is the founder chairman of the Trust for Advancement of Agricultural Sciences, and who you all know is a former secretary there and DG ICAR, and has been actively involved in all kinds of topical issues related to agriculture at the national and international level. So a pleasure in welcoming you, sir, and also a pleasure in welcoming our own president of the academy, Dr. Tarlochan Mahapatra. Also, as you know, he was until recently ago the secretary of the DARE and DG ICAR, and he himself is a very well noted scientist in the area of genomics, genetic engineering, etc., and particularly in a crop like mustard, जिसके आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही में मैं स्वागत करता हूं हमारे एक्सपर्ट्स का। डॉक्टर एन.के. सिंह नेशनल प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पूसा में। डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा हमारे डायरेक्टर हैं DCMA के। डॉक्टर भागमल हैं, एंड और आप सभी मीडिया पर्सनैलिटीज़ का, एंड डॉक्टर जोशी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और आप सभी का दोबारा से मैं स्वागत करता हूं। और हम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस या फिर ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस समय समय पर जो टॉपिकल इश्यूज होते हैं एग्रीकल्चर को लेकर, चाहे वो पब्लिक एट लार्ज उनके लिए हो या पॉलिसी मेकर्स के लिए हो, हम अपने यहाँ तरह तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करते हैं, राउंड टेबल डिस्कशंस करते हैं। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं हमारे फ्रेंड से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके सामने यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब लोग, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल कर आज हमारे यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनवायरमेंटल रिलीज of transgenic mustard hybrid DMH11 and its parental lines containing Barnase, Barstar and Bar genes by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as you all know, and you have been reporting it very heavily, we know it, and which happened on October 25, 2022, this year. And the National Academy of Agricultural Sciences and the Trust for Advancement of Agricultural Sciences welcome this landmark decision as a highly progressive step towards Atmanirbhar Bharat. नाउ ये टेक्नोलॉजी क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा, इसकी जरूरत क्या पड़ी, और 10 मिनट में ये मैं मेरी प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। और फाउंडर चेयरमैन ऑफ द Academy for the Trust for Advancement of Agricultural Sciences. Then we would open, and for 1 hour we'll have questions, clarifications, any doubts from you all. So with this, thank you again. Yes, I will share the presentation to all of you. I am sharing with all of you. Kindly give us some time before you go from here after lunch. I'll give you a copy to all of you. No, we have a copy. We'll give you all before lunch when after lunch when you all disperse. We will give you a copy. So with this, I request Dr. Mahapatra for his kind remarks. आप सब लोग जानते हैं कि GM मस्टर्ड क्या है। अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखा गया, लेकिन डॉक्टर बंसल साहब जो है वैज्ञानिक होने के नाते, और क्योंकि हमारे दोनों ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दोनों 2-3 बिंदु मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये है कि बंसल साहब ने बोले कि हमारा सरसों का तेल, खाने का तेल का जो खपत है, जो उपलब्धि है, उसमें बड़ा गैप है। हम 25 मिलियन टन के आसपास हमें आवश्यकता है, और 10 मिलियन टन जा पा रहे हैं, और करीब 13 से 15 मिलियन टन तो हम आयात करते हैं। और पिछले 2-3 साल में ये हालत जो है ऐसे बिगड़ा है कोविड के कारण, कि जो 70-80 हज़ार करोड़ हमारा खर्च होता था, तो अब 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है हम जो आयात करते हैं।
तो 1 लाख करोड़ से सालाना खर्च करना ये बहुत बड़ी हमारे इकोनॉमी का ये ड्रेन है इकोनॉमी के ऊपर, और इसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस में अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा जनसंख्या बढ़ेगा तो इसमें इसलिए हमारे खाने का तेल का उत्पादन हम बढ़ाएं, और उसको बढ़ाने के लिए कई तरीका हैं, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक तरीका है तो जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड पूरे विश्व में इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश में इस्तेमाल हुआ है। आप अगर देखेंगे मक्का हो, बाजरा हो, सोरगम हो और कपास हो, इसमें बहुत पहले हम संकर किस्म बना के देश में विकसित किए और प्रचार प्रसार किए, किसान की तरह अभिवृद्धि भी हुआ और उसका फायदा भी देश लिया है, हमारी उत्पादकता बढ़ा। और इसी तरह का धान में भी ये संकर किस्म के खेत में गया है, 3 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हम उसको उगा गया। तो संकर किस्म उगाने के लिए जो तरीके हैं वो तरीके हमारे पास कुछ हैं, कुछ नहीं भी हैं, और आप जानते हैं कैसे संकर किस्म उगाए जाते हैं। और सरसों में जैसे बताया गया कि हमारे पास एक तरीका तो ये था कि साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी सिस्टम यूज करके, इसको CGMS बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेरिस्टेलिटी सिस्टम, CGMS। तो उसको इस्तेमाल इसका कुछ हमारे लाइन्स इस तरह के हमारे पास उपलब्ध है, और उसको भी यूज करके कुछ हाइब्रिड हम बनाए भी हैं। लेकिन उसको बनाने में उसको 3 लाइन की आवश्यकता होती है, एक मेंटेनर है, एक मेल्सराइड लाइन है, एक रिस्टोरर है, और समय लगता है कन्वर्सन। और उसको ध्यान में रखते हुए और एक सिस्टम जो जेनेटिक मेल्सराइड सिस्टम है, उसका विश्व में उसके बारे में चर्चा भी हुआ और इस्तेमाल भी किया गया। और ये जो सिस्टम है बारस्टार बेस्ड सिस्टम, ये सिस्टम 90 के दशक में इसका कमर्शियलाइज किया गया और पैटेंट भी किया गया, और उसके बाद उत्पादन लगातार उससे इसको इस्तेमाल करते किया भी गया। और विशेष रूप में रेपसीड कनाडा एक उदाहरण है। और हम लोगों ने इसके ऊपर शोध तो किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस डॉक्टर पिंटल के ग्रुप इसके ऊपर शोध किए हैं, आप देखे हैं, पैटेंट भी लिए हैं, प्रोसेस पैटेंट है, और जो कंस्ट्रक्ट्स बनाए हैं उसमें नोवेल्टी है। और तो इसीलिए ये अपना टेक्नोलॉजी माना जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल पैटेंट था वो तो उसका 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, और हमारे देश में तो पैटेंट हुआ नहीं, और वो सब तथ्य की विषय है और आपके पास भी जानकारी है। और हमारे जो पैटेंट किया गया और उसको आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी बनाया गया, और ये काफ़ी 4-5 साल से चर्चा में भी रहा, और अब भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया गया है, आप जानते हैं। और ये जो हमारी कमी है खाने की तेल का, 13 से 15 मिलियन टन हमारी कमी है, इसको एक बड़ा मदद मिलेगा अगर हमारा उत्पादकता कम। सरसों में आप देखिएगा उत्पादकता 1.5 टन भी नहीं, औसत जो उत्पादकता है। तो इसीलिए अगर हाइब्रिड को इस्तेमाल करते हैं और 20% का हमें यील्ड एडवांटेज मिलता है, तो हम इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। बात ये होता है कि क्या कपास में जैसे हुआ था शुरू में, आप अगर देखिएगा जिस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, इवेंट सिलेक्शन हुआ था और जिसको इस्तेमाल किया गया, वो देश के लिए कोई उपयोगी नहीं था। लेकिन आगे उसको हम बैकक्रॉस करके उस जीन को ट्रांसफ़र करते हुए हजारों संख्या में हाइब्रिड किस्म बना दी। तो अभी एक बार ये डीरेगुलेट हो गया है जैसे अभी, और उसके बाद अनेक संख्या में और पैदावार हाइब्रिड, नए हाइब्रिड बनाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये इसका पाबंदी था, रेस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो इसको और इस्तेमाल करते हुए ब्रीडिंग सिस्टम में तो उसको
नए नए हाइब्रिड बनाया जा सकता है और पैदावार बढ़ाया जा सकता है। 20% का भी एडवांटेज है, हम 20% एडवांटेज भी दिला सकते हैं, जैसे हम कपास में हुआ और बाकी फसलों में भी हुआ है। जेनेटिक मैसेलिटी सिस्टम या साइटोप्लाज्मिक मैसेलिटी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक तो पहलू ये है कि हमें ये आवश्यकता है टेक्नोलॉजी जितना है कि बड़ा बास्केट होना चाहिए। जब जब जो भी आवश्यकता हो, जैसे जैसे तरीके से करना हो, एक ब्रॉड बास्केट हो, बिगर बास्केट हो, एक अल्टरनेटिव हो, तो 2 3 4 तरीके से हम अगर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ तो अच्छा होगा। और जहाँ फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है, उस तरह की टेक्नोलॉजी जो वैज्ञानिक है वो भी अपनाते हैं और करते हैं। समय कम है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक बात और बता के समाप्त करूँगा। तो एक हो गया कि एक पहलू कि हमें उत्पादकता बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है और जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम करना है। और जो भी तरीका हो सकता है तो हम साइंस एकेडमी की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से यही बताना चाहेंगे कि विज्ञान भित्तिक जो भी हमारी इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बढ़ावा देना चाहिए और उसके बारे में आप लोगों का भी मदद की आवश्यकता है। आप लोग काफ़ी इसके बारे में लिखे भी हैं। दूसरी बात ये है कि जब इस तरह के कोई टेक्नोलॉजी आता है, सर्टनली काफ़ी प्रश्न मन में रहता है, स्वाभाविक है कि प्रश्न रहता है और इसका चर्चा करना प्रश्न के संबंध में बहुत जरूरी है। एक मुद्दा जो बंसल साहब बताए संक्षिप्त में कि भाई हर्बिसाइड टॉलरेंस डाला गया और वो हर्बिसाइड टॉलरेंस आपको ये हम बताएं कि हमारे देश में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और जितना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है हर्बिसाइड भी उसका 16 से 18% हर्बिसाइड भी। तो ये नहीं कि हम हर्बिसाइड यूज़ पूरे देश में नहीं करते और किसान को जो फ़ायदा होता है, आप जानते हैं कि HTPT कॉटन का क्या स्थिति है। किसान को जहाँ पैसा सेव होता है, उसका कम लागत होता है, तो वो टेक्नोलॉजी अपनाता है। और उसी तरह का और जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जिन फसलों में आवश्यकता है खरपतवार को दमन करने के लिए मैनेज करते हैं, वो यूज़ करता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का हम प्रमोट कर रहे हैं या सरकार अप्रूव किया है, इसमें जो मेन फसल होगा, हाइब्रिड उगाया जाएगा, वहाँ कोई खरपतवारनाशी का ग्लूफोसिनेट का इस्तेमाल नहीं करने का है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है और उसको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं कि क्यों वो अप्रूव नहीं है, ना उसका कोई इस्तेमाल करने वाला है। जो बीज उत्पादन जो होगा उस समय हमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगा और कंट्रोल कंडीशन में होगा और उसके लिए लेवल क्लेम जो भी आवश्यकता होगा उसका भी एक्सपांशन देना, एक्सटेंड करना के बारे में और आगे बात कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ पर अभिवादन करता हूँ और खुशी की बात है कि ये प्रेस मीट का जो आयोजन हुआ है वो जॉइंटली है बाय द एकेडमी एंड बाय द ट्रस्ट। और ट्रस्ट का रोल थिंक टैंक है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी एडवोकेसी एंड पब्लिक अवेयरनेस, तो एंड ऑल्सो प्रमोटिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फार्मर्स एंड इंडियन एग्रीकल्चर। तो इन उद्देश्यों को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिसी एडवोकेसी में हम थोड़ा सक्षम हो पाए हैं, हालांकि देर लगी, 12 साल हुए, बैन हो गया था। हमारी टेक्नोलॉजी साइंटिस्टों ने लेके और इंडिजिनस अप्रूव करवाई थी, पर उसको उस टाइम बीटी ब्रिंजल को आपको याद होगा रिलीज़ नहीं होने दिया था। उसके बाद एम्बार्गो चलता रहा। भारत में बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। हर साल कम से कम 500 से 700 करोड़ डीबीटी खर्च करती है एग्रीकल्चर, आईसीआर तो करता ही है। तो इस रिसर्च का फ़ायदा हम देख रहे थे कि किसानों तक पहुंचने में जो है पॉलिसी आड़े आ रही है। समहाउ वो पॉलिसी मैं कहता हूं कि
एप्रिशिएटिव डिसीजन है ये कि इस एम्बार्गो को हटाया गया और ये सोचना कि इसको रिलीज कर दिया गया है जनरल कल्टीवेशन के लिए, ये मेरे ख्याल से गलत जो है वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाने के लिए दी जा रही है। ये एनवायरमेंटल रिलीज हुआ है। आपके पास ऑर्डर की कॉपी भी होगी और नहीं है तो इसकी कॉपी आपको दे देंगे ताकि आप इसको समझ लें कि पहली बार आफ्टर दिस मच ऑफ एफर्ट साइंटिस्टों का, हमारा सबका कहना कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको हमारा भारत में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो बहुत सक्षम हो गया है। जब बीटी कॉटन हमने रिलीज किया था तब भी यही रिजर्वेशन थी। जब मैं मेरी पढ़ाई यहाँ इस इंस्टीट्यूट में शुरू की थी और जो है हरित क्रांति के बीज बोए जा रहे थे तब भी यही रिजर्वेशन थी कि ये बोने गेहूँ और बोने धान क्यों लाए जा रहे थे। जब बीटी कॉटन लाए थे तब भी वही रिजर्वेशन थी, पर हमें पता था कि ये किसानों के लिए और देश के फ़ायदे के लिए है। और आज आप देख रहे हैं उस बात को करीब 20 साल हो गए रिलीज हुए और जो भारत पहले इंपोर्ट करता था आज मेजर एक्सपोर्टर हो गया है। हमारी यील्ड जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई हैं। हम 10 मिलियन बेल भी नहीं प्रोड्यूस करते थे, 35 मिलियन बेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो पेस्टिसाइड यूज़ जो मैक्सिमम 50% हो रहा था एग्रीकल्चर में, वो कॉटन पे हो रहा था उस टाइम और बहुत सारे सुसाइड्स भी हो रहे थे। और तो उसको देखते हुए हमने कहा कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड को रिड्यूस करेगी और 35 to 40% पेस्टिसाइड यूज़ भी रिड्यूस हुआ है। अब उसको अगर देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी